Fifth paragraph, unit number 3. The little girl. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो यहाँ पर ग्रैंडमदर उनको रूम के अंदर देखने को कहती है और वहां पर वो अच्छा सा पेपर वहां पर दिखाई देता है और उसी पेपर से वो छोटे छोटे पीस बनाकर कुशन के अंदर स्टफ के लिए वो यूज करती है. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो उनकी माता उनको पूछती है कि केजिया, उस दिन घर के अंदर पूरा माहौल है वो अफरा तफरी वाला बन गया था क्योंकि पिताजी के इम्पोर्टेंट स्पीच के डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं मिल रहे थे. उन्होंने पूरे घर के अंदर हंगामा मचा दिया. सभी वेटर्स को भी बहुत से क्वेश्चन पूछे और लास्ट में केजिया की मदर आकर केजिया को पूछती है कि आपने कोई पेपर्स देखे यहाँ पर. तो केजिया कहती है कि हाँ, उनके मैंने छोटे छोटे पीसेस बना दिए और इसको सरप्राइज गिफ्ट के लिए इनका मैंने यूज किया है. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. जल्दी से नीचे आओ. उनकी माँ उनको डांटने लगती है. And she was dragged down to the where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and started at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fed down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. और उनकी माता को वहां पर भेज दें. 7th पैराग्राफ में crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. और वो कहता है हाथ में स्केल लेकर आते और मैं आपको आज मारूंगा, पीटूंगा. और वो घबराई हुई कर्टेन के पीछे छुप जाती है और नहीं नहीं ऐसा मना करती है. वो रड़ती है, उनको बहुत घबराहट लगती है और वो इनके पिताजी उनको वहां से कर्टेन से बाहर निकालते हैं. Sit up, he ordered, and hold out your hands. और इनको हाथ बंधे हुए रखने को कहते हैं. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उनके कहते हैं कि जो आपके लिए नहीं है वो सभी चीज को आपको टच नहीं करनी है, आपको स्पर्श नहीं करना है. वो आपको सिखाना पड़ेगा और इसीलिए आपको आज पनिश करना पड़ेगा. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palm. मगर वो तो आपके बर्थडे के लिए मैंने इसका यूज किया और उनके छोटे से जो हाथ है, पिंक कलर के हाथ है, छोटी सी केजिया, उनके हाथ में रूलर पड़ती है.
8th paragraph. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो ऐसे ही उनको फियर इनको घर हो गया था, माने वो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग के अंदर फियर छा गया था। 9th paragraph. The McDonald's lived next door. तो ये दोनों बच्चे जो है दोनों घर के कंपेयर करते हैं। यहाँ पर पूरा फियरफुल माहौल बनाया है इनके पिताजी ने, और बाजू के ही घर के अंदर जो मैकडोनाल्ड रह रहे हैं वो भी पिता है, वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेलते हैं, हंसते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. In the evening, the father with the baby, mom, on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the house on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was he decided there were different sorts of father. और जब वो बाजू के घर में अपने जो पड़ोसी है, नेबर है मैकडोनाल्ड, वो अपने 5 बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेलते, कोई बच्चा उनके शोल्डर के ऊपर बैठता है, कोई उनके कोट के अंदर हाथ डालकर खड़ा है, तो ये सभी बातें वो बच्चे के पीछे दौड़ते, बच्चे को पकड़ने के लिए जाते, बच्चे उनको पकड़ते। इतना माहौल जो वो देख रहे, तब उनको लगते हैं कि पिताजी के भी सोर्स होते, उनके भी टाइप्स रहते हैं। एंड सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल. और एक दिन जब माँ उनकी बीमार पड़ जाती है तो वो ग्रैंडमदर के साथ हॉस्पिटल जाती है. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. और छोटी सी लड़की उनको वो घर के अंदर रख देते हैं, अपना कुक जो है एलिस उनके साथ. That was all right in the daytime. मगर पूरा दिन जब रहता है तब तो कुछ चिंता की बात नहीं रहती, वो केजिया घर के अंदर सुरक्षित रहती है. The little girl saw through a gap the McDonald's playing tag in the evening. तो यहाँ पर जो लिटिल गैप फेंसिंग है वहां से केजिया देखती है कि अपने पड़ोसी जो मैकडोनाल्ड अपने सभी बच्चों के साथ किस तरह से खेलता है. ये चित्र आप देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर पूरा समझाने का प्रयास किया है. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. मगर एलिस जब इनको अपने बेड के अंदर सुलाने के लिए ले जाते हैं तब उनको बहुत घबराहट होती है. पॉइंट नंबर 10. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो वो कहती है, एलिस को पूछती है कि यदि मुझे नाइटमेयर आ जाएगा, भयंकर डरावना स्वप्न आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा. ज्यादातर तो ग्रैंड मदर ही मुझे उनके साथ सुला लेती है और मुझे जो अंधेरे से बहुत डर लगता है. एलिस जवाब देता है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट
you scream and wake your poor papa. तो वो कहती है कि वहीं पर सोए रहना, अपने बेचारे पापा को भी मत उठाना. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. तो जब उनको नाइटमेयर आता है, फिर से वही डरावना स्वप्न, कसाई अपने हाथ के अंदर बड़ा सा छरा लेकर, नाइफ लेकर वहां खड़ा है, और एक हाथ में रोप है, वो उनके हाथ में है, और वो वहां खड़ा है, और वो डरने लगती है, रोने लगती है. ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, दादी माँ ऐसी आवाज करती है. और वो जब उनकी थोड़ी सी आंखें खोलती है तो वो देखते हैं कि पिताजी हाथ में कैंडल लेकर वहां खड़े हैं. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her hand under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Her "Rub your feet against my legs. Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. तो जब वो देखते हैं तो पिताजी हाथ में कैंडल लेकर है. उनको डर लगता है. वो उनको फिर से कसाई दिखाई दे रहा है, मगर वो अपने पिताजी उनको वहां पर अपनी बेड के ऊपर ले जाते, वहां न्यूज़पेपर पढ़ाए उनको दूर कर देते, और वो अपनी छोटी सी बच्ची को वहां पर सुलाने का प्रयास करते. फिर भी ये जो केजिया है, इनको वो कसाई दिखाई दे रहा है, मगर वो अंधेरे से डर है, पिताजी से भी डर है, मगर वो आंखें बंद कर वहां सो जाती है, और बाद में उनको नींद आ जाती है. तो 12th पैराग्राफ के अंदर, "Tried out, she slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald." She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream." "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear." तो यही वो उनको महसूस होता है कि उनके पिताजी है, वो भी बहुत टेंडर हार्टेड है, वो भी सभी जो मैकडोनाल्ड है उनकी तरह वो भी अच्छे पिताजी है, मगर वो स्ट्रेस के अंदर हार्ड वर्किंग के वजह से वो भी थोड़ा सा क्रोध में रहते हैं, थोड़े से डरावने लगते हैं. आज केजिया को ऐसा महसूस होता है. हर पिताजी वो पिताजी ही होते हैं, मगर हर एक घर के अंदर अलग अलग जिम्मेवारी रहती है, अलग अलग परिस्थितियां रहती है, और उनकी वजह से वो आपको तुरंत महसूस नहीं होता कि मेरे पिताजी भी सबसे अच्छे, वर्ल्ड के बेस्ट डैड है, ऐसा तुरंत आपको नहीं लगता. मगर जब आप उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको पता चलता है कि मेरे डैड, मेरे पिताजी वो इस विश्व के अंदर सबसे अच्छे पिताजी हैं, और इसके लिए आपको भी रिस्पेक्ट बढ़ जाता है.
सो इस चैप्टर के अंदर हमने पूरी स्टोरी को समझने का प्रयास किया। अब इनके क्वेश्चन आंसर है उनको आपको समझकर कॉम्प्रिहेंस कर अपनी फेयर बुक के अंदर लिख लेना है।